Students, I have presented my screen in front of you. Now today we are going to discuss topic of Election Commission of India. So let's move on to our topic, that is Election Commission of India, powers, functions and responsibilities. They are saying the Election Commission of India, abbreviated as ECI, is a constitutional body responsible for administering elections in India according to the rules and regulations mentioned in the Constitution of India. So they are trying to tell you कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, in that constitution there is one provision of election commission of India that body is responsible for conduct the elections in India, and the short form or the abbreviated form of election commission of India is ECI. Good morning, sir. Very good morning, ji. Very good morning. It was established on January 25th, 1950. The major aim of Election Commission of India is to define and control the process for elections conducted at various levels: Parliament, state legislature, and the offices of the President and Vice President of India. It can be said that Election Commission of India ensures smooth and successful operation of the democracy. कह रहे हैं कि 1950 में इसकी establishment हुई थी, इसको बनाया गया था, और इसका जो मेन की एम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इट इज टू डिफाइन एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। मैंने पहले आपको बोला है कि जितने भी इलेक्शंस इंडिया में संवैधानिक रूप से हो रहे हैं, उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो रहा है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट लेवल पे हो रहा हो, या फिर जैसे स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि मैंने बोला है आपको विधानसभा या ना उस लेवल पर हो रहा हो, तो दैट इज व्हाट ये सब जिसको बोलते हैं इसके अंदर ऐड हो सकता है। लेट मी जस्ट वेट ऑन फॉर सेकंड, ए स्टूडेंट आई थिंक इज वांटिंग टू ट्राई। आई थिंक हम पंचायती राज कर रहे थे, आपके दूसरा बता रहे हो? पंचायती राज हमारा खत्म हो गया कल हमने कर तो लिया तीनों पैटर्न जो थे। ओके सर। चलिए according to Article 324 of Indian Constitution, the Election Commission of India has superintendence, direction and control of the entire process for conduct of elections to Parliament and legislatures. Like example they have given, state legislative assemblies and state legislative councils of every state and to offices of President and Vice President of India. ये उनका अधिकार क्षेत्र जो है वो बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 324 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है किस चीज़ की, कि वो इसको डायरेक्ट करे, कंट्रोल करे एंटायर प्रोसेस को, इलेक्शंस के, पार्लियामेंट के लिए, लेजिस्लेचर के लिए जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ जाती हैं, और करें हर स्टेट का जो जिसमें बोल सकते हैं जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसको इलेक्शन कमीशन कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे भी इलेक्शंस होते हैं उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं एक प्रोविजन, एक पावर अपने हाथ में रखता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दी है। इनिशियली द कमीशन हैड ओनली a chief election commission. Presently it consists of a chief election commissioner and 2 election commissioners. So they are saying that initially earlier it was having only one person that was called as a chief election commissioner. Now it has got 3 people. There is one chief election commissioner and the 2 election commissioners. For the first time, 2 additional commissioners were appointed on 16 October 1989, but they had a very short term till 1st January 1990. Afterwards, on 1st October 1993, 2 additional election commissioners were appointed. The concept of multi-member commission has been in operation since then,
विद डिसीजन मेकिंग पावर बाय मेजॉरिटी वोट। तो बताने की कोशिश करें कि सबसे पहले सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो थे वही एक पोस्ट यहाँ पर बनाई गई थी चीफ इलेक्शन कमीशन की, लेकिन उसके बाद इसके साथ दो और लोगों को जोड़ दिया गया जिनको इलेक्शन कमिश्नर का नाम दिया गया है। And they have said that actually the term it has started in 1989 but it was stopped in 1990. So पहले जो टर्म चलाई गई वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, so it was stopped at 1990. लेकिन 1993 में दोबारा से इस टर्म को शुरू किया गया जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है उसके साथ साथ 2 एडिशनल जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो भी अपॉइंट करे। तो कह रहे हैं तब से सिंस देन ये जो चीज़ है वो ऑपरेशन में है, लगातार चल रही है और इसी तरीके से इसको चलाया जा रहा है। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कमिश्नर, द प्रेसिडेंट has the power to select chief election commissioner and election commissioners. बेसिकली जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए भी, और जो 2 एक्स्ट्रा जो अलग से एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके लिए भी। दे हैव टेन्योर ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। कह रहे हैं इनकी जो टेन्योर होती है वो 6 साल की होती है या तब तक जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी एज 65 साल से ज़्यादा ना हो जाए, जो भी दोनों कंडीशंस में पहले लागू हो जाएगा उसको मान लिया जाएगा। They have the same status and receive pay and perks as available to judges of the Supreme Court of India. So you can see that it is a very respected position, as they have said that the Supreme Body of India, that is the Supreme Court of India. So the judges, those who are getting the salaries of Supreme Court, same salary, same pay and perks are given to the election commissioners. तो similar level पे उनको भी देखा जाता है। The chief election commissioner can be removed from office only through acquisition by the parliament। कह रहे हैं कि इनको सिर्फ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसको सिर्फ एक ही तरीके से अपनी पोजीशन से हटाया जा सकता है उसके टेन्योर खत्म होने से पहले, अगर पार्लियामेंट में इसके अगेंस्ट प्रस्ताव पास किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब आगे के 2 जो हमने बात की है उसकी, और जो रीजनल लेवल पे जो कमिश्नर इलेक्शन कमीशन में काम कर रहे हैं तो उनकी वो बात कर रहे हैं कि इनको हटाने के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी रिकमेंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिकमेंड करेंगे तभी इनको आगे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको हटाया जा सकता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एंड क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस, क्या क्या इनके एडवाइजरी फंक्शंस हैं, क्या क्या क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस हैं, आइए थोड़ा सा इनको भी डिस्कस करते हैं। Under the Constitution, the Commission also has advisory jurisdiction in the matter of post-election ineligibility of sitting members of Parliament and state legislatures। कह रहे हैं सबसे पहले अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेके हम बात कर रहे हैं कि जो इनको पावर्स दी गई हैं। कमीशन है ऑल्सो हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कमीशन की एडवाइज करने की भी जुरिस्डिक्शन है जिसमें वो कौन से मैटर्स को देखते हैं, पोस्ट इलेक्शन इन एलिजिबिलिटी ऑफ सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में सिटिंग मेंबर्स हैं उनकी अगर इन एलिजिबिलिटी बन रही है और इलेक्शन कमीशन जो है उसको लग रहा है कि ऐसा है, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर है, तो ये उस मौके पर अपनी जो सलाह है ये दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। एडिशनली the cases of persons found guilty of dishonest practices at elections which come before the Supreme Court and High Court are also referred to the Commission for its opinion on the question as to whether such person shall be disqualified and if so for what period. The judgment of the Commission in all such matters is binding on the President or as the case may be the Governor to whom such opinions is tendered। कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इलेक्शंस के जो केसेस आते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी भी राय मांगता है, तो वो उनको भी लिखता है, उनसे भी पूछता है कि हाँ जी आप हमें बताइए कि इस केस में आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। तो उनका ये भी एडवाइजरी फंक्शन है, उनका ये ओपिनियन है, वो भी बताते हैं कि इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाए या उसका जो किया गया क्राइम बन रहा है वो इतना ज़्यादा हाई स्केल का जो क्राइम है वो नहीं बन रहा है। सो दैट इज अगेन डिपेंड्स अपॉन कि जो इसको बोलते हैं एडवाइस है कमीशन की, वो किस तरीके से अपना जो ओपिनियन है उसके आगे रखते हैं। और कह रहे हैं जो जजमेंट ऑफ कमीशन है वो किस सब मैटर्स में प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनको वो माननी पड़ती है, बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट एज अ केस में भी, लेकिन डिपेंड्स हो सकता है कि कई जगह पर इन चीज़ों को ना माना जा सकता हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो प्रेसिडेंट साहब है वो इस चीज़ को मान लेते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के केसेस में गवर्नर को ये चीज़ माननी पड़ती है, जो कमिश्नर्स उनको आगे ओपिनियन फॉरवर्ड करते हैं।
The commissioner has a power to prohibit a candidate who has failed to lodge an account of his election expenses within a time and in manner set by law. कह रहे हैं इनके पास काफ़ी पावर है, जिसमें एक पावर ये है कि किसी भी कैंडिडेट को प्रोहिबिट कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं उसके ऊपर कि तुम इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्होंने जो खर्चा किया है या किसी तरीके का जो कानून है इलेक्शन कमिश्नर जो जुरिस्डिक्शन के अंदर जो उन्होंने अपने बातें पास की थी उसको नहीं माना गया, तो ये उसको रोक लगा सकते हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते. The Commission also has the power to remove or reduce the period of such disqualification as also other disqualification under the law. कहते हैं कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन है, इसको पूरे जनता अधिकार है, they have got power to remove or reduce the period of such disqualification. अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया है उसकी टर्म को बढ़ाने या घटाने के लिए भी इनके पास अधिकार है. ये देख सकते हैं कि अगर लगता है कि इनको उसकी टर्म कम करनी है तो ये कम भी कर सकते हैं, ये उनकी पावर के अधिकार क्षेत्र में आता है. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स to decide the territorial areas of electoral constituencies throughout the country on the basis of the Delimitation Commission Act of Parliament. आइए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अब उनकी डिस्कस कर रहे हैं. कह रहे हैं टू डिसाइड द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द कंट्री. तो ये पूरे देश में जो चुनाव होते हैं उनकी जो कंस्टिट्यूएंसीज है उनका जो टेरिटरी है उसको भी जिसको बोलते हैं कि निशानदेही करते हैं, उसको बताते हैं कि यस ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कि किसी जो कॉन्स्टिट्यूशंसी को किसी को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है. तो ये डिसीजन भी ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही रहता है. To organize and periodically amend electoral rules and to register all qualified voters. तो ये time to time what they do that they actually see that those who have registered as the qualified voters, तो इनके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है कि कोई किसी जगह से चेंज होकर एड्रेस चेंज हुआ है, किसी ने अपनी वोटर वहाँ से वोट कटा के दूसरी जगह करनी है, ये नहीं कि एक बंदा 4 जगह पर वोट बनाकर वोट दे रहा है. तो ये सब चीज़ें भी इनके जुरिस्डिक्शन के अंदर आती हैं. To inform the dates and schedules of election and to scrutinize the nomination papers. अब जो dates हैं वो भी यही निर्धारित करते हैं कि on this date the elections will be held and those such dates and schedules it will be made by Election Commission of India. Even the nomination papers which are filled by the people, those who want to stand into the elections, these processes are also controlled by the Election Commission of India. To grant recognition to political parties and allot election symbols to them. ये भी है कि अपने आप से आप नहीं जाके लड़ सकते हो. अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आपको इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेनी होगी और वो ही आपको रिकॉग्नाइज करते हैं. अगर आप किसी पार्टी के साथ जुड़कर या पार्टी अपनी नहीं बनाकर कोई चुनाव लड़ना चाहते हो, then they have got this thing that they'll recognize you as a political party and give you a symbol, election symbol on which you can fight for your elections. तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं. टू एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल टू देम. कई बार दो पार्टीज के बीच में झगड़ा भी हो जाता है कि ये हमारे पास जो इलेक्शन सिंबल ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, या ये हमारा इलेक्शन सिंबल है. तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी इनका कंट्रोल है क्योंकि ये उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं, बताते हैं कि कौन सी पार्टी को कौन सा सिंबल मिलेगा. इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही ये चीज़ आती है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द फॉलोइंग. ECI किस को अपॉइंट करता है, इनकी कुछ लिस्ट है वो आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर. ECI in consultation with state government or the union territories administration nominates or designates an officer of the said state UT as the chief electoral officer to supervise the election work in the state of the UT. ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का मतलब है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो यूनियन टेरिटरी है चाहे वो स्टेट है, तो वहाँ पर एक नुमाइंदा उनकी तरफ से बनाया जाता है जिसको हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बोलते हैं. वो पर्सन सुपरवाइज करता है पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इन दैट स्टेट और द यूनियन. डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर. ECI in consultation with state government or union territories
Administration designates an officer of the said state duty as a district election officer to supervise the election work of the district. अब जो इलेक्शंस आपको पता है काफ़ी पीरियोडिक लेवल पे, मतलब सॉरी काफ़ी हियरार्किकल लेवल पर होते हैं, जैसे मैं बोल रहा है कि स्टेट सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें सो दे आर सेइंग कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर भी जो इलेक्शन कमीशन है अपना एक नुमाइंदा वहाँ पर सेट करते हैं जिसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है। Then third is returning officer. Okay. ECI in consultation with state government or a union territory administration nominates or designates an officer of the state, officer of the government or a local authority as a returning officer for each assembly and parliamentary constituency. Returning officer is responsible for the conduct of elections in the parliamentary or assembly constituencies and may be assisted by any or more assistant returning officers, again appointed by the ECI in the performance of his functions. So they are saying what exactly it is. They are just trying to tell you that तीसरे तरीके का जो अपॉइंटमेंट है जो ECI की तरफ से की जाती है उसको रिटर्निंग ऑफिसर बोला जाता है। ECI अगेन कंसल्टेशन विद द स्टेट यूटी, एक यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके साथ बात करते हुए नॉमिनेट करती है या डेजिग्नेट करती है ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी एज ए रिटर्निंग ऑफिसर फॉर ईच असेंबली एंड हर एक जो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी है या एक असेंबली है जहाँ पे इलेक्शन लड़ा जाता है वहाँ पर एक रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट किया जाता है। उसका काम क्या है, ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन द पार्लियामेंट्री और असेंबली कंस्टिट्यूंसी में भी असिस्टेड बाय, उसका काम होता है जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं या असेंबली कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर जो है कंट्रोल करना, और इसके लिए उसको जो और भी रिटर्निंग ऑफिसर जो है असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जिनका नाम दिया जाता है उसको इसकी हेल्प करने के लिए दिए जाते हैं और इसकी अपॉइंटमेंट भी जो है अगेन ECI ही करता है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ECI अपॉइंट्स द ऑफिसर्स ऑफ स्टेट और द लोकल गवर्नमेंट एज इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर द पार्लियामेंट्री असेंबली कंस्टिट्यूंसी। ये चौथा पार्ट है जिसमें बोल रहे हैं ये प्रिपेयर करने के लिए जो लोगों को वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को, ये बेसिकली जूनियर लेवल पे आ जाते हैं जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये इनका काम जो रजिस्ट्रेशन का मेनली पर्पस रहता है कि दे सी दैट हाउ मेनी रजिस्ट्रेशन इट हैज कम, ऑल दीस थिंग काइंड ऑफ वर्क्स दे डू। तो ये उन्होंने 4 तरीके की अपॉइंटमेंट्स बोली हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, रिटर्निंग ऑफिसर एंड इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? They're saying Election Commission of India plays a vital role in organizing elections. The most critical challenge before the Election Commission of India is to implement norms and the model code of conduct to ensure free and fair elections in the country. Its existence and independence are necessitated by history, which has revealed that self-governing elections are not free from disruption. Towards this end, it has been empowered to supervise political parties and candidates and take appropriate action in case of violations. Mainly काम क्या है? Honestly elections करना। कह रहे हैं कि बहुत सारी हिस्टोरिकल ऐसी बातें हुई हैं जिसके अंदर ये चीज़ निकल के आई कि कई बार इलेक्शंस के बीच में डिस्ट्रप्शन होती है, डिसऑनेस्टी की बातें हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स हैं उनका नज़र रख सके, वो किसी तरीके की वायलेशन ना करे। तो इस सब चीज़ के लिए चीज़ों के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी एग्जिस्टेंस है, उसको बनाया गया। फंक्शंस एंड पावर्स, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द गार्डियन ऑफ फ्री एंड रीजनेबल इलेक्शंस। कैसे इसको गार्डियन की उपाधि दी गई है कि एक गार्ड है, ये एक रक्षक है कि हमारे भारतवर्ष में किसी तरीके की कोई इलेक्शंस में गड़बड़ी ना हो। It is the model code for conducting every election for political parties and candidates so that the decorum of democracy is maintained. Democracy क्या कहती है? सबको समान अधिकार। तो अगर ये चीज़ कंट्रोल्ड हो जाएगी तो एक ही पार्टी राज आ जाएगा, वो वही पार्टी दोबारा से राज करती जाएगी अगर फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। तो उसके ऊपर भी उनके ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट जो है जारी करे ताकि डेमोक्रेसी का जो डेकोरम है वो टूटे नहीं।
It regulates political parties and registers them for being eligible to contest elections. ये देखते हैं कि अगर कोई पार्टी पहले तो अपना पार्टी को रजिस्टर कराना चाहती है, एक चिन्ह लेना चाहती है, इलेक्शन सिंबल लेना चाहती है, तो दे सी दिस थिंग that how it is being done. Second thing is they also see that क्या वो इस लायक हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन दे दी जाए। ये भी इन सब बातों को जांचने के बाद, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनकी और बहुत सारी चीजें जांचने के बाद देंगे परमिशन। It publishes the allowed limits of campaign expenditure per candidate to all the political parties and also monitor the same. Political parties को एक तय जिसको बोलते हैं सीमा दे दी जाती है कि आप इसके अंदर ही जो है एक्सपेंडिचर वो करोगे, एंड दे हैव टू सी दिस थिंग। इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन नज़र भी रखता है कि इससे ज़्यादा कोई कैंडिडेट लीगली किसी तरीके से किसी को रिकॉल प्रभावित ना कर पाए, किसी को पैसे देकर या किसी और तरीके से। Political parties must submit their annual report to ECI for getting tax benefit on contributions. कह रहे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी जितना उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है उसकी रिपोर्ट तैयार करवाकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको सौंपते हैं, ताकि वो जान सकें कि what kind of the expenditure it has been made by that party, and if they want to avail the tax benefits on that expenditure they can also do that. It guarantees that all political parties regularly submit their audited financial reports. और इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि ये सभी जो political parties हैं उनको ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई हैं उसको ऑडिट भी करते हैं, ठीक है, ताकि वो जान सकें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि उन्होंने इतना खर्चा किया है और उनके पास जो चीज़ आई है वो कितना खर्चा दिखा रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जांचने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। इससे आगे का जो लेक्चर है आई थिंक वी विल डू इट टुमारो, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। अभी हमने जितना किया हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन कमीशन है क्या, इसकी पावर फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर क्या है कमिश्नर का, ठीक है, एडवाइजरी जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शंस क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या हैं, किन किन लोगों को ये अपॉइंट करते हैं, ठीक है, रोल ऑफ कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर इनके जो की फंक्शंस हैं वो आज हमने की हैं। जो कल के लेक्चर में हम देखेंगे उसमें अंदर आ जाएगा इनकी अदर पावर्स आ जाती हैं, वो आ जाएंगी, मेन ड्यूटीज़ आ जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आ जाएंगे, इनको क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है। आर द कमीशन एंड CEC इक्वल, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चीफ इलेक्टोरल इलेक्शन कमीशन एंड कमिश्नर से सेम है या डिफरेंट है, इनके ऊपर भी क्या इनके बीच का जो संबंध है दिस वुड बी डिस्कस्ड। इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बात की जाएगी। जो कुछ फ्लॉज हैं, इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये सब बातें हम कल एक बार करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा दैट विल बी ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहले हम आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस अबाउट द टुडेज टॉपिक प्लीज यू कैन आस्क। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बता। सर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जब वो इलेक्ट किया जाता है सर, फिर वो 6 साल के बाद दोबारा से चुनाव नहीं लड़ सकता? बेसिकली बेटा ये नहीं है कि उसकी टर्म निर्धारित की कि वो 6 साल तक जो है उसकी टेन्योर रहेगी। उसके बाद अगर उसको अपॉइंट करना है तो फिर वो प्रेसिडेंट साहब के फिर उसके ऊपर आ जाता है जुरिस्डिक्शन के, वो अपॉइंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। यानी वो फिर से इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगर प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं तो उसको दोबारा बनाया जा सकता है। और सर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर ये दोनों चीज सेम है या डिफरेंट है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है बेटा। देखो पहले उन्होंने प्रोविजन में बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले जो 1950 में ये एग्जिस्टेंस में आया तो वहाँ पर जो बात की गई तो इट वाज सेड कि सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ही बनाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ता गया और इसकी ड्यूटीज़ एंड रोल्स जो हैं, पावर्स हैं इसके हाथ में आती गई तो ज़रूरतें बढ़ती गई। तो उस तरीके से इसके साथ साथ इनको हेल्प के लिए जैसे अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर 2 और दी गई हैं। अब इसी तरीके से अब उन्होंने इसको हायरार्किकल लेवल पर बांट दिया है। जो रीजनल लेवल है वो नीचे आ जाता है उस लेवल पर, जैसे स्टेट के लेवल पर आ गए तो सिटीज़ के लेवल पर आकर वो आकर देखते हैं
कि यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है जो म्यूनिसिपल उसके काउंसलर के इलेक्शन होते हैं, जिसको हम कमेटी इलेक्शंस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इन सभी के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है इसका हाथ रहता है, वो इसको पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में लेके ही करते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं, रीजनल लेवल पे करते हैं, उसको रीजनल जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी बोला जाता है, इलेक्टोरल ऑफिसर बोला जाता है। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके अंदर काम होकर करते हैं। हाँ जी Excuse me, sir? हाँ जी बेटा। सर जो हाँ ये जी इलेक्शन कमीशन है सर, हाँ इसको जी जो हैंडल करने वाले होते हैं वो आपने 3 मतलब बताए थे ना, जो वो हाँ हैंडल करते हैं जी। इलेक्शन मेन कमेटी को। मेन हाँ जी, जो मेन है वो यही है। हाँ जी सर ये जो बोलिए बेटा मेन बोलिए। है सर, जो ये मेन है ये चीफ इलेक्शन ऑफिस था ना सर। सर एक इसके अंडर जो नाम ये है इसका 3। इलेक्शन, देखो इसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इसका मेनली नाम होता है। और इसको जो चलाते हैं, जो हेड है, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 एडिशनल कमिश्नर दे दिए हैं, जिसको बोले 2 और इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता है। तो ये इसकी जिसको बोल सकते हैं कॉल एक बॉडी है जिसको हम बोल सकते हैं। हाँ जी सर यही पूरा हैंडल करते हैं ना, जो इलेक्शन बिल्कुल जी, से। बिल्कुल बिल्कुल टोटली यही हैंडल करते हैं। इन्हीं के अंडर चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे हो, चाहे वो स्टेट के इलेक्शन हो रहे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हो रहे हो, और हर तरीके से जो हैंडलिंग है यही करते हैं। तो सर ये इन पे भी तो डिपेंड करता है कि ये कौन सी पार्टी को ये जिताए ना जिताए, ये इन पे डिपेंड करता है, नहीं नहीं करता? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही इसीलिए तो इनको बनाया गया है कि ये पार्टीवादी से ऊपर निकल कर आए, ठीक है। नहीं सर, ये किसी के साथ जुड़े नहीं होते? नहीं, ये किसी के साथ नहीं जुड़े होते, पूरे तरीके से ये इसको बोलते हैं कि अनबायस्ड होते हैं, किसी के साथ भी इनका कोई लिंक नहीं होता। ओके सर। Yes, anything else? Anything else? नो सर। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं। जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन इट। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। आई थिंक आपके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है, सो मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है इसके लिए ऑफ कर देता हूँ, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ में लिखवा देता हूँ।